Hello student, today we are going to continue with the matrices. In matrices, we are going to deal with the inverse of the matrix. Now here, to find the inverse of the matrix, you have the different ways, like by using the adjoint method. By using the adjoint method, by using the elementary transformation. In elementary transformation, my dear, you have to use the elementary row transformation or elementary column transformation. Now try to understand, if you want to find out inverse of this matrix by any one of this method, you are going to get the same answer. But problem is what? In exam they may ask find the inverse of the given matrix by adjoint method. So you are bound to use this method or by row transformation or by column transformation. अगर उन्होंने कोई मेथड स्पेसिफाई किया है तो कंपलसरी आपको मेथड यूज ही करना है. अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, लाइक दिस क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, then you are free to use any of these method. Now here I am going to use the row transformation because already I have given the video based on the adjoint method. अभी यहाँ पे हम लोग डियर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और इनवर्स फाइंड आउट करेंगे. Row transformation. Now to find the inverse of any matrix, try to understand, first and foremost you have to check it whether the given matrix is invertible or not. What do you mean by the invertible? Invertible means, dear, you have to find out the determinant of this matrix. A matrix का आप determinant find out करो. अगर determinant की value 0 नहीं आता है तो ही आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो. अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. सी, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. एज यू ऑलरेडी नो, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, you have to convert in the determinant format, that is 2 minus 3 minus 1 and 2. So this is nothing but 2 into 2 4 minus minus plus, but determinant sign minus means 3, so it's a 1. So determinant of A you got as a 1, which is not equal to 0. So here you are eligible to find the inverse of this matrix. Determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Try to understand, therefore A inverse exists. After that, what to write it down? A into A inverse. A into A inverse is I. I is nothing but the identity matrix. Now I am going to explain you what is the identity matrix, which will going to help you in the 2 by 2 or 3 by 3 matrix also. Now identity matrix. Identity matrix, this is also called as the unit matrix and it's denoted by capital letter I. Now my dear, try to understand, identity matrix of order 2 by 2, that is 1 0 0 1. Identity matrix of order 3 by 3 is 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1. This is of order 2 by 2. This is of order 3 by 3. Now you can concentrate over here. See, this is the diagonal element. It's a diagonal element and these are the non-diagonal elements. So identity matrix means what? Diagonal elements gives you 1 and non-diagonal elements gives you 0. That is called as the identity matrix. So as per your requirement of 2 by 2 or 3 by 3, accordingly you can use it. Now here we are required 2 by 2 only. So our A is 2 minus 3 minus 1 and 2 into A inverse is nothing but identity matrix, that is 1 0 0 1.
Now, dear, try to understand what to do to find A inverse. Concentrate. Our aim is what? Our target to convert this matrix into identity matrix. This is the matrix A inverse is nothing but you have to convert this matrix into some other matrix. Try to understand here. Explanation is the important part. At the end of this video, if you are going to continue the video at the end, you can able to easily understand how to go about this. And this is the very confusing topic. बच्चों को इसमें बहुत डिफिकल्टी आता है. बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमको तो समझता नहीं है, एग्जाम में भी मिस्टेक हो जाता है. बिलीव मी, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो 100% आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. एंड ये एक क्वेश्चन सीखने के बाद 2x2 का कोई भी XYZ आप मैट्रिक्स ले लो, उसका इनवर्स इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ आवर एम इज टू कन्वर्ट दिस इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, ये ऑटोमेटिकली दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यूनिट मैट्रिक्स, any matrix, matrix itself. What do you mean by this? Try to understand. See, यूनिट मैट्रिक्स का अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. यूनिट मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको वही मैट्रिक्स मिलता है. ये मैं एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छे से आप समझो. अगर समझो ये यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हम लोग 2x2 का बात करें तो 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूं 1 0 0 1. Now I'm going to take the any matrix of order 2x2. So it's a 2 3 4 and 5. Now try to understand here. इसका ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, समझो ए है. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इसका रिजल्ट मुझे ए मिलना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई. सो 1 into 2 0 into 4 that is 2 only. 1 into 3 0 into 5 that is 3 only. 0 into 2 0, 1 into 4 4 and 0 into 3 1 into 5 that is 5. Now you can see you got the this one only. Now unit matrix, this is a unit matrix. Any matrix, कोई भी एक मैट्रिक्स उसके साथ में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. ये जो मैट्रिक्स है वही आपको रिजल्ट मिलता है मैट्रिक्स इटसेल्फ. नाउ व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. ये मैं अभी रफ कर देता हूं. देखो ये क्या है, ये कोई भी मैट्रिक्स है. ए इनवर्स इज एनी मैट्रिक्स, उसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो चेंजेस हुई मैट्रिक्स रहेगी बी. यही हमको करना है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. To convert this matrix into identity matrix, you have to follow the particular step. This is the most important tricks I am going to give you here, so that easily you can able to complete this type of question. Try to understand. See, this is A, B, C, D. See, here we are dealing with the 2x2 matrix, so I am going to explain you everything for 2x2 and for 3x3. कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें आपको ध्यान रखना है. एज यू ऑलरेडी नो द पोजीशन ऑफ ए इज 1 1. दिस इज दियर 1 2. इट्स अ 2 1. इट्स अ 2 2. नाउ व्हाट टू डू, क्या इसमें चेंजेस करना है आप एकदम अच्छे से समझो. यहां पर 1 1 के पोजीशन पे आपको 1 कर देना है. विद द हेल्प ऑफ दिस वन मेक इट हियर 0. 2 1 के पोजीशन पे divide by same number, make it here 1. With the help of this one, make it here 0. This is the way, this is the step you have to follow. Now here you can see, my dear, this is the identity matrix 1 0 0 1. Now you concentrate how to go about this one. See, this is
A inverse is identity matrix. So our first aim in the place of 1 1 we want 1, but यहाँ पे कितना है 2 है. It's in R1 and R2. Remember we are using the row transformation. So in place of 1 1 we have to make it as a plus 1 with the help of R2. So my operation will be R1 changes to R1 plus R2. Why plus R2 my dear? Because R1 is 2, R2 is minus 1. So 2 minus 1 gives you 1. That is the my requirement. Clear? तो इसको आप कैसे लिखोगे? And remember one thing, most important part here, कैलकुलेशन इज नॉट बिग थिंग. ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है, बट इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है डियर. तो इसके लिए क्या करना है, जिस रो या जिस रो में आपको चेंजेस नहीं करना है उस रो को आपको पहले लिख दो. तो यहाँ पे आप R1 में चेंजेस करने वाले हो तो R2 को आप एज इट इज पहले से लिख दो. दैट्स इट. नाउ R1 में क्या है, R1 प्लस R2, 2 minus 1 gives you 1 only. See, R1 is minus 3. R1 is minus 3 plus 2. Plus 2 minus 3 plus 2 gives you minus 1. Now dear, try to understand over here. R1 is 1. 1 plus 0 gives you 1. Now it's a 0 plus 1 gives you 1 only. Now try to understand, in place of 2 1, in place of 2 1 means here I have to make it as a 0 with the help of this. Now see, no need to write down every time R1 R2, but just for sake of your understanding I am going to write the things. Now अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, मुझे चेंजेस कहाँ करना है, R2 में. R2 changes to R2 प्लस R1. प्लस R1 क्यों, क्योंकि देखो ये -1 है और ये +1, ये 0 हो गया. बाकी जगह में क्या चेंजेस हो रहा है उसमें मुझे ध्यान नहीं देना है, बट हाँ इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. नाउ अंडरस्टैंड हियर एंड कंटिन्यू. रिमेंबर द स्टेटमेंट. द रो, जिस रो में आपको कॉलम चेंजेस नहीं करना है और रो को आप पहले लिख दो, तो उसमें आपको गलती से भी कोई मिस्टेक, चांस ही नहीं कि कोई मिस्टेक हो जाए. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. R2 प्लस R1, R2 में मुझे चेंजेस करना है तो मैं R1 एज इट इज लिख देता हूं. R2 प्लस R1 यहाँ 0 हो जाएगा. R2 2 माइनस 1 यहाँ 1 हो जाएगा. R1 प्लस R2 यहाँ भी 1 हो जाएगा. R1 प्लस R2 यहाँ पे 2 हो जाएगा. नाउ माय नेक्स्ट एम इज टू मेक इट 2 2. ये जो 2 2 का पोजीशन है यहाँ पे 1 होना चाहिए. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 आ गया है. अगर डियर समझो यहाँ पे 1 नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको सेम नंबर, जो भी यहाँ नंबर समझो यहाँ 2 3 4 5 होता था, वो नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है सो दैट यू कैन गेट इट हियर 1. And remember one thing, whatever operation you are doing in the left hand side, same operation you have to follow in the right hand side also. Now our last concept, in place of 1 2 you have to make it as a 0, as simple as that. So how to go about this my dear? चेंजेस कहाँ करना है, R1 में. तो ऑपरेशन क्या होगा, R1 changes to R1 plus R2. R1 प्लस R2. फिर से वही बात मैं बार बार इसके लिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके माइंड में वो सेट हो जाना चाहिए. जिस रो में आपको चेंजेस नहीं करना है डियर, उस रो को आप पहले ही लिख दो कि उसके बाद मिस्टेक नहीं होना चाहिए. चेंजेस R1 में करना है तो R2 को आप पहले से लिख दो. ये हो गया 1, ये हो गया 2. R1 प्लस R2 1 and R1 plus R2 0, R1 plus R2 2, R1 plus R2 3. As I explained you, ये वाला मैट्रिक्स को हमको किस में कन्वर्ट करना था,
आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था, तो हमारा आइडेंटिटी में कन्वर्जन हो गया है। नाउ I into A inverse is this matrix, that is 2 3 1 2. I am going to repeat the statement for you. Unit matrix into any matrix is matrix itself. Therefore A inverse we got as a 2 3 1 2. This is our answer. It's the end of this question. Now something that I am going to explain you, which is the most important part my dear. एकदम अच्छे से आप समझने की कोशिश करो। ये तो आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम आता है कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, वो आप कैसे चेक करोगे? वेरी सिंपल। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। चेक करने के लिए डियर आपको ये मैट्रिक्स का और ये जो A है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई बता रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरिफिकेशन का मार्क्स नहीं है। अगर जो आपको वेरीफाई करना है उसका एग्जाम में मार्क नहीं है, बट बिफोर द एग्जामिनर, अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर निकल रहे हो तो आपको पहले ही कंफर्म हो जाता है कि मेरा जो ए इनवर्स फाइंड आउट किया हूं ये राइट है कि रॉन्ग है। क्या करना है ध्यान से समझो। ए इंटू, चलो मैं पेन चेंज करता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा, so that you can forget the things. A into A inverse should give you identity matrix. अगर जो आपको क्वेश्चन दिया है, जो आपको इनवर्स मिला है, उसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, मतलब जो आपका आंसर ए इनवर्स आया है वो राइट है, अदरवाइज इट्स अ रॉन्ग। तो क्या होगा डियर, ये हमारे पास क्या है, 2 -3 -1 एंड 2 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या मिला, ए इनवर्स मिला 2 3 1 2, 2 3 1 2। अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझो। 2 इंटू 2 4 -3 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस 0, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 0, -1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4 दैट इज 1। देखो डियर यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला, मीन्स जो आपको ये इनवर्स मिला है ये 100% राइट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर मिला है वो राइट है कि रॉन्ग है। वन मोर थिंग, इट्स अ शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि अगर समझो ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा है और अगर समझो ये इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, दिस इज द वे। अगर समझो ये एमसीक्यू में पूछा है, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर एमसीक्यू के लिए अगर इतना सब सॉल्विंग करना है सो इट्स अ डिफिकल्ट। सो हाउ टू गो अबाउट इट, डायरेक्ट आंसर कैसे फाइंड आउट करना, आप ध्यान से समझो। जैसे आपका एक क्वेश्चन है ए इज 2 -3 -1 एंड 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिला है, ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शंस दिया है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू चेक इट, इतना पूरा करने से, इतना पूरा नहीं करके आप एकदम शॉर्टकट में कैसे आंसर्स को फाइंड आउट कर लोगे, ध्यान से समझो। क्या करना है डियर, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट वी गॉट एज अ 1। अब डायरेक्ट ए इनवर्स क्या होगा, ध्यान से समझो, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझो, ये दोनों का प्लेस चेंज कर देना है। किसका प्लेस चेंज करना है, 1 1 और 2 2। 1 1 को 2 2 के प्लेस पे लाना है, 2 2 को 1 1 के प्लेस पे लाना है, बट यहाँ सेम नंबर है तो वही आ जाएगा, आपको मे भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। और ये जो प्लेस है 1 2 एंड 2 1, 1 2 एंड 2 1,
ये दोनों को नंबर्स वही रखना है, चेंजेस क्या करना है डियर, चेंजेस आपको करना है जो इनका प्रेजेंट में साइन है, जैसे इसका साइन माइनस है तो आपको प्लस कर देना है, इसका साइन माइनस है तो आपको प्लस कर देना है, प्लस है तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको बैक फॉरगेट कर सको इसके लिए मैंने दिखाया है। दिस इज द इनवर्स, एज यू कैन सी 2 3 1 एंड 2, डायरेक्ट आप यहाँ आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन दिस वे क्लियरली यू कैन एबल टू फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं सेम ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन का 3x3 का मैट्रिक्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, एनी डाउट यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।